Welcome to my channel Science Rush. In this video we will discuss about human digestive system. Human digestive system comprises of alimentary canal and associated digestive glands. The alimentary canal consists of mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. And the associated digestive glands are salivary glands. They are present in mouth, gastric glands, present in stomach, liver and pancreas. माउथ और बकल कैविटी. अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में बेसिकली वी हैव टीथ एंड टंग. टंग के ऊपर गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. दे हेल्प इन सेंसिंग द टेस्ट ऑफ फूड. देन वी हैव टीथ. टीथ क्या करते हैं? दे हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स सो दैट swallowing becomes easier. Mouth has teeth and tongue. Salivary glands are present in mouth. The tongue has gustatory receptors. They help in sensing the taste of food. Tongue helps in turning over the food so that it can be mixed properly. जितना भी saliva secrete होता है उसके साथ food mix हो जाता है with the help of tongue. Tongue rolling over करवाता है food की. Then we have teeth. They help in breaking down of food into smaller particles so that swallowing becomes easier. Basically, there are 4 types of teeth present in mouth: incisors, canines, premolars and molars. Incisors helps in cutting of food. Canines helps in tearing and cracking of hard substances. Then we have premolars. They help in coarse grinding of food, and molars fine grinding of food. Salivary glands. They secrete saliva. सलाइवा क्या करता है? फूड के साथ मिक्स होता है, उसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है. एंड सलाइवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन. सलाइवा मेक्स द फूड स्लिपरी व्हिच मेक्स इट इजी टू स्वेलो द फूड. सलाइवा कंटेन्स एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन. सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू शुगर. जो भी हम फूड लेते हैं उसको सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट कर देता है शुगर में. Mouth helps in intake of food. Food का body में enter करना it occurs through mouth. Then we have teeth. It helps in chewing and grinding of food. Then we have tongue. It helps in rolling, tasting and pushing down of food. Means swallowing of food occurs through tongue. Then we have salivary gland. It secretes saliva plus mucus. And the food we eat, it converts into sugar with the help of enzyme salivary amylase. Esophagus. Esophagus क्या करता है? जो भी हम फूड माउथ में लेते हैं उस फूड को स्टमक में लेके जाना it occurs through esophagus. Taking food from mouth to stomach by peristaltic movement. Now what is peristaltic movement? It is the contraction of muscles to push the food. Then we have stomach. Stomach is a bag-like organ and highly muscular walls of stomach helps in churning the food. जो stomach की walls होती हैं, they secrete HCl acid, that is hydrochloric acid, and it kills germs which may be present in food. It also makes the medium acidic, necessary for gastric enzymes to work. Gastric glands जो होते हैं, they are present in stomach. और उनकी सिक्रीशंस तभी काम करती हैं जब वहाँ पे HCl एसिड प्रेजेंट होता है. एंजाइम पेप्सिन सिक्रेटेड इन द स्टमक डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. पार्शियल मीन्स हाफ. हाफ डाइजेशन जो प्रोटीन्स की होती है दैट अकर्स इन स्टमक विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन. देन द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक सेव्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम HCl. जो भी एसिड सिक्रीट होता है वो हमारी स्टमक वॉल्स को बर्न कर सकता है, बट वो बर्न इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो स्टमक की वॉल्स होती हैं दे सिक्रीट म्यूकस विच हेल्प्स इन सेविंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl. दिस इज ओवरव्यू अबाउट द स्टमक. Stomach contains gastric glands that secrete gastric juice. Gastric juice contains pepsin, HCl and mucus. Pepsin is an enzyme that helps in breaking down of proteins. Then we have HCl, it helps in making the medium acidic. Then we have mucus, it protects the inner lining of the stomach from HCl acid. Small intestine. It is a highly coiled tube
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है दैट इज ऑलवेज लार्जर देन लार्ज इंटेस्टाइन, बट जो इसका ल्यूमन होता है वो छोटा होता है देन दैट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, duodenum, jejunum and ileum. Then we move to liver. Liver is the largest organ in human body. It manufactures bile juice which gets stored in gallbladder. जो भी लिवर मैन्युफैक्चर करता है बाइल जूस को वो स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, और जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो गॉल ब्लैडर से रिलीज हो जाता है। फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड। पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक एंड सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और जो मेजर डाइजेशन है वो इसी की वजह से होती है। इट कंटेन्स ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन्स पे एक्ट करता है और प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में, और जो लाइपेज होता है, लाइपेज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद फैट्स। लाइपेज वर्ड कहीं पे भी प्रेजेंट होगा इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू फैट्स। ये फैट्स को कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉल में। नाउ the bile and pancreatic juice go to the duodenum via hepatopancreatic duct. Bile juice जो होता है वो लिवर से आता है and pancreatic juice जो होते हैं they come from pancreas. ये दोनों मिलके duodenum में जाते हैं। duodenum एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, किसके थ्रू? via hepatopancreatic duct. उसके बाद जो बाइल होता है ये फैट्स पे एक्ट करता है, जितने भी लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स होंगे उनको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉलर पार्टिकल्स में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। देन वी हैव लाइपेज एंजाइम। लाइपेज क्या करता है? कन्वर्ट करता है फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। देन वी हैव ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। दे बोथ डाइजेस्ट द प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अमीनो एसिड्स। जो मेजर पार्ट होता है डाइजेशन का वो ड्यूोडेनम एरिया में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब हमने बात करी कि जो ड्यूोडेनम एरिया उसके अंदर क्या होता है, मेजर डाइजेशन होती है ड्यूोडेनम में। ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम, दीज 3 आर द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो जेजुनम होता है इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन जेजुनम। अब हम अगर इलियम की बात करें तो इलियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो इनर वॉल होती है इलियम की वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, विलाई। द इनर वॉल इन द इलियम इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज विलाई। अब विलाई क्या करते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई और क्या करते हैं? ये रिड्यूस कर देते हैं जो इलियम का ल्यूमन है उसे, कि जो फूड है वो ज़्यादा टाइम तक इलियम के अंदर स्टे कर सके और जो उसकी डाइजेशन है वो मैक्सिमम हो सके। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय विलाई। दिस इज अबाउट द क्रक्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द इलियम एंड दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द blood, and they also increase the surface area for absorption. Now the small intestine receives secretion from liver and pancreas. जो liver होता है उसकी जो secretion होती है that is called as bile juice, जो कि act करती है large fat globules को और उनको convert कर देती है smaller fat globules में, जिस process को हम emulsification कहते हैं। Then we have pancreas. Pancreas secrete करती है pancreatic juice जिसके अंदर we have trypsin and lipase. जो trypsin होती है वो प्रोटीन्स पे एक्ट करती है और उनको कन्वर्ट कर देती है पेप्टोन्स में, एंड जो lipase होता है वो फैट्स पे एक्ट करता है एंड कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। Now this is the last part of human digestive system, that is large intestine. It is smaller than the small intestine. The undigested food goes into the large intestine. जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया स्मॉल इंटेस्टाइन में अब वो एंटर कर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन की जाती है बाय द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर दिस द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द रेक्टम।
जो भी अब अनडाइजेस्टेड फूड है, जो एब्जॉर्ब लार्ज इंटेस्टाइन में भी नहीं हो पाया है, वो कहाँ चला जाएगा, रेक्टम में, और वो रेक्टम से एंटर कर जाएगा एनस में, और एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स एक्सेस ऑफ वाटर, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी वाया एनस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं digestion. This is all about human digestive system. In our next video, we'll discuss about respiratory system. Thank you.